So till now, up to last class, we had completed about, we discussed about innate immunity, right? In innate immunity, we have discussed about components, we discussed about factors, we discussed about barriers. Clear? Okay. These three, especially आपको factor याद रखना, you have to remember what are the factors: chemical, biological, and physical. What are the barriers? Anatomical, then physical, then mechanical and chemical. Okay, so there is barriers, there are some factors which are providing you immunity, that is non-specific and that is innate. Okay, that is non-specific as well as innate. Now, before going to today's class, because there are two types of immunity. One is innate, other is adaptive. But I will start with the adaptive immunity. But before going to adaptive immunity, I will discuss some components of adaptive immunity. Okay, some basic idea of some other things. We then require that basic ideas, we can easily understand about the innate immunity. Okay, yeah, sorry, adaptive immunity. Clear? It is like that things. At first I will introduce what is the pizza, then only you can recognize Napoleon or Domino's, like that. Okay, you don't know about the pizza, I will just this is Napoleon. Now we will say Napoleon Pizza House or Domino's Pizza House. Now what is pizza? Something you cannot recognize the things. So before going to theoretical adaptive immunity, today we will discuss about antigen and its type. Then we will discuss about antibody and its type. Okay, so antigen, antibody, when we have completed, I think antigen, its type, and antibody type, it will take minimum 5 class. Antigen and antibody. Okay, 4 to 5 class minimum. No, minimum 5. Okay, if you will cooperate to me, otherwise you will. Okay, so it will take 5 class. Then after we start adaptive immunity. Clear? Okay, so antigen, I will start with this. What is antigen? What does mean by antigen? Sorry, formula avni. Any foreign molecule. Any other answer? जो एंटीबॉडी जनरेट करता है. Any other answer? इम्यूनो रेस्पॉन्स ट्रिगर करता है. गुड. एनी अदर आंसर? मैं आपको पहले भी क्लैरिफाई किया था, आंसर करो. जैसे कि आपका आंसर गलत नहीं है मेरा क्लास में. जस्ट एग्जाम्पल है, मैंने पूछा आपने खाना खाया, ये आंसर कर सकते हैं हाँ, इसका आंसर राइट. कीर्ति आंसर करता है ना, उसका भी आंसर राइट. वो बोले मैं थोड़ा खाया, उसका भी आंसर राइट. ये बोले बहुत खाया, उसके आंसर भी राइट. कोई बोला मैं खा रहा था, कोई आ गया मैं खा नहीं पाया, उसका आंसर. दैट मीन्स मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसका आंसर आपका रॉन्ग नहीं है, इसलिए आंसर करो. वो आपका एबिलिटी बढ़ाएगा, आपका अंदर से ये निकलेगा. पब्लिक स्पीकिंग या ये होता है ना, निकलेगा. आप यू मे टॉक इन इंग्लिश, यू मे टॉक इन हिंदी, ओके, यू मे टॉक इन गुजराती, उड़िया, तेलुगु, and soon after I will introduce within 4 to 5 months Marathi. તો ગુજરાતીમાં બોલો, મને ગુજરાતી બધું ખબર પડશે, બોલતું નથી આવડતું, પણ સમજ શકતા હશે. because in Gujarat since 2009, 2009 से मैं गुजरात से रह रहा हूँ. हाँ, कुछ टिपिकल टर्म समझ नहीं पाऊंगा जो गांव में बोलते होंगे, पर आपका शहर का गुजरात तो मुझे समझ में आता ही है.
please be a part of the game. कहीं पे कैप्टन खेलता नहीं है, सभी मिलके खेलेंगे तो हम जीतेंगे. यहीं पे होता है मैं ही खेलता हूँ बस, बस दो चार खेलते हैं बाकी बस साइड में बैठे रहते, नहीं चलेगा. आना चल से. क्लियर? रूल ऑफ द गेम, वी विल प्ले ऑल टुगेदर. Antigen. Someone given that any foreign molecule, Avni, right? Good. So, any foreign molecule, it may be right. It is given that it is that substance which generate antibody. It is also right. आपने same answer किया, जाके antibody generate करता है. Any variety of answer will become. But today we will discuss about what is this. What is exact definition of antigen? Okay. For that, suppose this is your body. Okay. Of course, of different shape is that, but I have put over. There is a antigen corona virus into the body. What will happen? Antibody will, as per your, this is foreign molecule, as per our definition. Now this is antigen. Am I right? According to the rhythm, it will generate antibody inside the body. Clear? So, which kind of antibody? Okay. Now antibody corona. इसका नाम है antibody होगा. So, what is happening with this? So, suppose एक है कि antibody generate करेगा IgC. Suppose कोरोना के लिए. ओके. I for IG क्या पढ़ेगा? IG एंटीबॉडी को शॉर्ट में IG बोलते हैं, पढ़ेंगे अच्छा. चलो, ये हो गया. अभी बॉडी में IgC है. नेक्स्ट टाइम क्या होगा? सपोज दूसरा कोई बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. Now this is antigen. ये फॉरेन मोलेक्यूल है. Now ये भी एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेगा. सपोज IgM. M for microtuberculosis, right? The thing is that is this antibody work with this antibody work with this? No, अगर स्पेसिफिक नहीं, अगर स्पेसिफिक एंटीबॉडी नहीं है. एंटीबॉडी मींस स्पेसिफिक. अगर इंसान का दो पैर होता, अरे इंसान मतलब दो पैर ही है, आप इंसान बोलोगे ना, इट हैज टू पैर ओनली. एंटीबॉडी हम बोल रहे हैं दैट इज स्पेसिफिक ओनली. स्पेसिफिक नहीं, स्पेसिफिक ही है. तो बात है इसका एंटीबॉडी इसमें नहीं होता है, इसका एंटीबॉडी इसमें नहीं होता है. क्लियर? इसको लेके हम डेफिनेशन बनाएंगे. हमें इतना पता है फॉरेन मॉलिक्यूल अंदर घुसता है, बॉडी में इट विल प्रोड्यूस एंटीबॉडी. क्लियर? तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन हुआ, वो एंटीबॉडी का इसको रिएक्शन करेगा, दूसरे को नहीं. क्लियर? क्या समझे? कोई फॉरेन मॉलिक्यूल है, बॉडी में इंटर करेगा, तो क्या प्रोडक्शन करेगा? एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेगा. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्या होगा? इस एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेगा, उस एंटीबॉडी के साथ उसका रिएक्शन करेगा, दूसरे के साथ नहीं. क्लियर? दो पॉइंट. तो फर्स्ट पॉइंट, when it enter to your body, it will produce, it will generate antibody. Antibody. It will generate antibody. Leave it. Class का निकाल देंगे. Okay. First point, it will generate antibody.
Second point, it will react with that antibody which is generated by you. It not other antibody which are present in your body. Clear? What is antigen now? Antigen has two definition. One is it will generate antibody. Second one, it is specifically reactive with generated antibody, not any other antibody. Suppose ये है, अगर इसका से इसका रिएक्ट करेगा, तो एंटीजन नहीं बोलते. तो एंटीजन ना उसको ब्रेक करेंगे. एंटी plus gen. Auntie means wife of uncle. Anti means opposite. Yeah, antibody here. Anti means antibody. Gen means generation. Here anti means antibody, gen means generation. But antibody generation karna is not the sufficient definition for antigen. एंटीजन आपको डिफाइन करने के लिए आएंगे तो आपको दोनों पॉइंट लिखेंगे तो आपको 1 मार्क या 2 मार्क मिलेंगे, अदरवाइज आपको आधा मार्क के मिलेंगे. पहले बोल रहा हूं, अगर आप लिख देंगे फॉरेन मॉलिक्यूल तो भी मार्क नहीं दूंगा मैं, क्योंकि एनी फॉरेन मॉलिक्यूल कैन नॉट बी कंसिडर्ड एंटीजन. एंटीजन होने के लिए इट इज टू मेन प्रॉपर्टी. फर्स्ट प्रॉपर्टी एंटीबॉडी जनरेट करेगा, सेकंड प्रॉपर्टी उसका साथ रिएक्शन करेगा, दूसरा किसका नहीं. ठीक है, अच्छा वो बोलते हैं घर में आएगा, खाना बनाएगा, एंटीबॉडी जनरेट करेगा और वो खाना खा लेगा, वो खाना दूसरा किसका नहीं है. तो बनाए खुद खा लेगा, उसको बनाएंगे. ओके, तो अच्छी वो बोलते हैं, वो होता है रिजल्ट को बोलते हो क्या, खाएगा अपना खाना बनाएगा, अपना खाएगा, इसको देगा ही नहीं, बस हर किसका भी नहीं खाएगा. चलो क्लियर. नाउ सोच है आपका अच्छी वो बनना है, बनो, मैंने क्या मना किया है, जिसको बनना है बनो, पर आई कैन नॉट बी. So now come to this point that antigen. One is anti plus gen. Anti comes from antibody and gen comes from generation. That means the substance which generate the antibody inside the organism is known as antigen. Am I clear? इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा अभी आपको. Right now, hence antigen can be depends on that which has two main property: ability to formation of specific antibody in the animal, ability to the formation of specific antibody in the animal, first one. Second one, ability to react specifically with generated antibody generation कर देना and is not the properties characteristics of your antigen. इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं दो चीज होना चाहिए बोल रहा हूं, क्या दो चीज होना चाहिए? एंटीबॉडी जनरेट करना चाहिए, सेकंड रिएक्शन उसके साथ ही करना चाहिए, दूसरा किसके साथ नहीं, क्योंकि बहुत सारे एंटीबॉडी आपका बॉडी में होंगे. ये गया हो गया, तीसरा कोई जाएगा, सपोज तीसरा सब्सटेंस आएगा ए, उसका एंटीबॉडी जनरेट होगा, चौथा रहेगा डी, उसका एंटीबॉडी जनरेट होंगे,
पांचवा ई इसका इंटरव्यू इसने ई एंटीबॉडी इसका साथ ई एंटीबॉडी इसका साथ नहीं चलेगा, आना चले, स्पेसिफिकली होना चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसे सिंबलाइज हो रहा है कि इज देयर एनी सब्सटेंस व्हिच विल प्रोड्यूस एंटीबॉडी बट नॉट येट प्रेजेंट। नो, अगर मैं आपको दो होना चाहिए बोल रहा हूं, एक जनरेट एंटीबॉडी कर रहे हैं, दूसरा रिएक्ट नॉट एंटीबॉडी, सो ऐसा कोई सब्सटेंस होंगे जो एंटीबॉडी जनरेट कर देंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, नहीं। मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, समझ रहे? सो अगर मैं दोनों चीज आपको दोनों होना ही चाहिए बोल रहा हूं, इसका मतलब बॉडी में ऐसा कुछ सब्सटेंस होंगे जो ओनली एक करते दूसरा नहीं फॉलो करते होंगे, जैसे कि ओनली एंटीबॉडी जनरेट करते होंगे और रिएक्ट नहीं करते होंगे, दूसरा एंटीबॉडी जनरेट नहीं करते होंगे, रिएक्ट करते होंगे। मतलब ऐसे ग्रुप है, खाना बना लेंगे, खाएंगे नहीं, दूसरा खा लेंगे, बनाएंगे नहीं। पर हमारे लिए दोनों होना चाहिए, बनाएंगे खाएंगे तभी हम एंटीजन बोलेंगे। दोनों से कोई एक है तो हम नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे पढ़ेंगे। एग्जाम्पल इज दैट I think I have to keep this view. Okay. Now antibody has both three properties. For example, one molecule is IL4, interleukin-4. We will discuss later on. Interleukin-4, which generates specific antibody. It will generate antibody, but it cannot react. Other molecules are captain. They cannot produce antibody or react with antibody. Yeah. So there are other substances. So अगर आप antigen में आप बोल दोगे those substances produce antibody, it cannot be antigen. या those are react with antibody, ये structure antibody. So the thing is that when we are talking about antigen, it has two property. Both property you have to, right? Generation of antibody and react with that antibody. Because we have other molecules which are not following both the rules. Either of one rule. Clear? Clear? Now, if there are not following both the rules, now IL4 or heptan, they cannot be antigen. Because IL4 produce antibody, cannot react. Heptan cannot produce antibody but react. Right? So इनको हम क्या बोलेंगे अभी? नहीं, चलो इसको हम बोलेंगे बिकॉज जब बॉडी में इंटर करते कुछ तो इम्यूनिटी शुरू होता है, इसको बोला इम्यूनोजन। क्या पढ़ेंगे हम इनको नाम से? इम्यूनोजन। सो these molecules are known as immunogens. Okay. Those molecules which trigger any kind of immunoresponse. Okay, when they enter to your body, when they trigger any kind of immunoresponse, they are known as immunogens. Now, क्या डाला जाता है? हेप्टेन, हेप्टेन्स नहीं, हेप्टेन। हेप्टेन डालते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन करने के लिए।
आप जो बोलते हो उसको एडजुवेंट बोलते हैं। वैक्सीन में डालते हैं एक सब्सटेंस, उसको बोलते हैं एडजुवेंट। मुझे पता है, वो कुछ पूछोगे आप लोग, आपके क्वेश्चन में आऊंगा मैं। एक साल पढ़ा लिया ना, मुझे पता चला क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है क्लास में, और उसी हिसाब से प्रिपेयर होकर मैं आता हूँ। पढ़ेंगे हम, एडजुवेंट भी पढ़ लेंगे, हेप्टेन भी पढ़ लेंगे। बोलते गुड। तो શું થયું આરપી? હે मैं कभी कंप्लेन मैं जब मैं तो सारे बच्चे देखते, मैं जब यहीं पे खड़ा होता हूँ मुझे सारे बच्चे देखते, मैं कोई कंप्लेन कभी किया? ठीक है, मेंसी, सृजा या हॉर्स, ये सब मुझे दिन में 10 बार देखते, मैं एक बार ही कंप्लेन किया? अब मुझे लगता है कुछ बच्चों को स्टेज के ऊपर बैठने की आदत डालना पड़ेगा धीरे धीरे। यहीं पे आके बैठोगे चुपचाप। हाँ, यहीं बैठोगे, नहीं तो मेरा पीछे खड़े रहोगे, मैं जो देखूंगा देखते रहोगे, वो भी करूंगा मैं, करता हूँ मैं जनरली। नहीं, मैं जनरली करता भी हूँ, यहीं बैठाता हूँ, यहीं बैठाता हूँ, लास्ट टाइम बैठाता हूँ, और वो सारा हो गया तो बाहर बैठा रहता हूँ। एट एनी कॉस्ट मैं बाकी सभी का क्लास खराब नहीं करना चाहता हूँ। एनीवे, सो बात इज दैट, मतलब थिंग इज दैट, हम जो मॉलिक्यूल एंटीजन कैटेगरी के फॉलो नहीं कर रहे, एनी मॉलिक्यूल व्हेन दे एंटर इनटू योर बॉडी दे ट्रिगर एनी काइंड ऑफ इम्यूनो रिस्पांस, वी विल कॉल देम इम्यूनोजेंस, राइट? व्हाट इम्यूनोजेंस? बट see that all are but एंटीजन, तो ठीक है, एंटीजन मतलब दो प्रॉपर्टी होंगे, एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेंगे, उसको रिएक्शन भी करेंगे। इम्यूनोजेन में ओनली वन प्रॉपर्टी होगी, either of one। सो आप बोल सकते हैं, इसने बोला all antigens can be immunogen but all immunogens cannot be antigen, right? So ये चीज याद रखना, all antigens are immunogens but not all immunogens are antigens। Example is that when immunogen react with B cells it will produce antibody, clear? But when it reacts with T cells it will go for cell mediated immunity, we will discuss about that. Okay, we will later discuss about that. So you have to remember that when an immunogen is there, suppose this is the immunogen coronavirus, when it reacts with the B cell, it will produce antibody. When this immunogen reacts with T cell, it will go for cell mediated immunity. Cell mediated. Okay, we'll discuss on that. We'll discuss details on that. Okay. Now, question is that when coronavirus of any antigen enters your body, now antibody production takes place. When antibody production takes place, which area? Just like आपके घर में डॉग घुस गया, डॉग सपोज टू बी, आपको बोला जाएगा, हाँ हाँ देखो, अगर व्हीकल्स बोल रहे हो ना तो आपका कौन देगा इननेट में, और बी सेल बोल रहे हो आएगा इधर तुम दोनों को मिक्स मत करो, होगा यहाँ से भी जाएगा, सेल वहां से भी जाएगा बी सेल होके, उसका हम पढ़ेंगे, हम अच्छे से उसको पढ़ेंगे, कोई बात देखो
बात है कि अगर मैं एडप्टिव का बात कर रहे तो इन्हें काम ही नहीं किया सोचो। नहीं बात है कि सुनिए, बात है कि आपका घर में कोई एंट्री कर रहा है, सिक्योरिटी गेट में अगर उसका रेस्ट्रिक्शन के बाहर भाग गया तो आपका राइफल निकलने की जरूरत है ही नहीं ना। सिक्योरिटी गेट में जो आदमी खड़ा है दैट इज इनर इम्यूनिटी, आपका टीचर में राइफल वाली इनर इम्यूनिटी। हाँ समझ गए। अगर एकदम इम्यूनिटी तब काम में आएगा जब आप इनर काम नहीं कर रहे हैं, इनर फेल हो गया तो अभी तक जो सिस्टम पढ़े थे ना बाय समहाउ उसके इनर को चकमा देंगे या समहाउ जहां पे इनर काम कर रहा है वो इनर की जरूरत नहीं होगी। लेकिन सर इनर के आधार पे ही एडेप्टिव मार्क करेंगे नहीं एमएचसी के पोर्टल को कैसे एंट्री करेंगे? वो तो रिलेशन दोनों में बीच में है, दोनों इंटररिलेटेड कोरिलेटेड है, पर एडेप्टिव होने के लिए इनर का आपका फेल होना चाहिए तभी एडेप्टिव होगा। आपका बल तिजोरी में राइफल है, कोई ठीक या जो भी है पहले सिक्योरिटी को क्रॉस करके आना चाहिए ना। अगर सिक्योरिटी से भागे तो आपको निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके सो हाँ अब हम पढ़ेंगे एंटीजन। सपोज ये एंटीजन है कोरोना वायरस है, आपका बॉडी में एंटर किया, अब ये एंटीबॉडी बनेगा, किस एरिया के लिए बनेगा? पूरा वायरस के लिए, पूरा एरिया के लिए, आधा एरिया के लिए, पौना कैसे बनेगा? जैसे कि आपके घर में डॉग घुस गया, डॉग हाँ कुत्रो, तो आप उसको कैसे रख सकते हो? मतलब आपको हार नहीं होना है तो आप क्या करोगे? उसको मुंह को बांध लोगे, मुंह को बांध ले तो कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे सांप का हो, जो लोग घूमते मुंह को बांध लेते बस हो गया, बाकी सारा प्रॉब्लम नहीं है, वो मुंह ही प्रॉब्लम है। सेम जो भी एंटीजन बॉडी में इंटर करता है वो एंटीजन का ऊपर में कुछ एरिया होता है। ओके दैट एरिया वो एंटीजन को डिफाइन करता है। वो एरिया किसको डिफाइन करता है? एंटीजन को। सपोज ये एरिया में कोई मॉलिक्यूलर होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, दो चार मॉलिक्यूल जो भी होंगे, ज्यादा नहीं 6 to 8 अमीनो एसिड होंगे इन केस ऑफ प्रोटीन, और आपका कार्बोहाइड्रेट होंगे या मोनोसैकेराइड यूनिट होंगे इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, लिपिड होंगे। तो एनीवे 6 to 8 मोनोमर्स होंगे, वो भी सरफेस में ही होंगे, राइट? वो उस एंटीजन को डिटरमिन करेंगे, समझा? तो एंटीजन सरफेस में 6 to 8 मोनोमर यूनिट होते हैं जो उस एंटीजन को डिटरमिन करते हैं, and antibody will be generated basis on that. Okay, now what is role of this? It will determine the antigen. Though it is determine the antigen, it is known as antigenic determinant. What is that? Antigenic determinant. Am I clear? रिपीट करेंगे, चलो रिपीट करेंगे कितनी? मैंने क्या बोला भक्ति? हाँ कहाँ हो मैडम? आप कहाँ हो? पूरा क्लास को पता चल गया, मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा, आपको ही पता नहीं चला। तो आगे बैठो, मैंने आपको पीछे बैठा भेजा ही नहीं है, वहां पे बैठो जहां तक वो सुनाई दे। मैं पागल नहीं हूँ, मेरा दिमाग खराब है। बोलो, चलो इसका क्वेश्चन पूछ बोल लो।
क्या क्वेश्चन पूछा मैं आंसर कर दूंगा? हाँ, ये मुझे कुछ क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर मैं आपसे जानना चाहा, और आप उसी टाइम अरब में मतलब यूएई में होंगे, कहीं घूम रहे थे ना बाहर जाके। क्लास में प्रेजेंट रहो, फिजिकली मेंटली। फिजिकली मत रहो चलेगा, पर मेंटली तो रहो। कहाँ घूम क्यों रहे हो? उसका क्वेश्चन था, फिर से रिपीट करो, व्हाट इज एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, अब नहीं बताओ। हो क्या गया इस क्लास को? अभी किसी बोलो बेटा बोला हाँ, और ये क्या है? सारे के सारे आंसर में ये तो क्लास वाले में पढ़ा तो कहीं घूमते हो। मैंने कितना मतलब कुछ नहीं करना है, मैं पीपीटी दे दूंगा आपको, कुछ करने ही नहीं आपको, बोलूंगा मैं लिखो, और उस टाइम में टाइम भी दूंगा आपको लिखने के लिए। नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ इसको समझ में नहीं आता है। हाँ बोलो, ऐसे दे रहा है जैसे कोई गिफ्ट दे रहा है। बोलो भाई बोलो। देखो, मैं अगर आप भाइयों में ले रहा हूँ, मुझे इसको 50 मार्क देना आउट ऑफ 50, पूरा लोग बैठे हैं, परफेक्ट नहीं कर सकता हूँ। क्वेश्चन पूछना है और उसका आंसर आना भी चाहिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है पूछूंगा, उसे 50 आउट ऑफ 50 में दूंगा। पर मैं इसको मेरा बात नहीं, कौन सुन रहा है? सब तो सुन रहे। सपोज मैंने किसी को मार्क नहीं देना चाहता हूँ, सपोज दूसरा कोई क्लास का, उसको क्या पूछूंगा? फर्स्ट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन, व्हाट इज योर फादर्स नेम। उसको क्या पूछूंगा? व्हाट इज माय फादर्स नेम। हाँ हाँ, उसको व्हाट इज माय फादर्स नेम, वो कितने पढ़ के आएगा? आएगा ही नहीं, आएगा? और ये 100 के भी आएगा, इसको पता चलेगा? इसका मतलब अगर परसेंट में आपको पता ही नहीं चलेगा, आप सारे क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं, स्मार्ट हो, पर अभी मेरे से नहीं। देखो, बात है कि कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया कुछ है, उसकी स्पेसिफिक साइट पे जो उसका सरफेस में कुछ मॉलिक्यूल है, जो मॉलिक्यूल उसका लेंथ होगा 6 to 8 अमीनो एसिड्स इन केस ऑफ प्रोटीन, इट मे बी कार्बोहाइड्रेट एज वेल, अगर कार्बोहाइड्रेट होंगे तो 6 to 8 अमीनो सॉरी मोनोसैकराइड होंगे। क्लियर? ये किस तरह कुछ नहीं समझ में आया, मतलब कुछ आगे छोड़ना नहीं, कंफ्यूज होते रहोगे, आप ब्लैंक रहो। ओके, कौन जगह सारे कोरिलेशन बाद में हम करेंगे, फिर समझ और सिस्टम, ठीक है? कहीं पढ़ लिया कि पिज्जा का मतलब टमाटो, पिज्जा में टमाटर का ऊपर में क्या था? जलेबिन था, तो कंसेप्ट हो गया टमाटर जलेबिन होता है। मैं बोलो पिज्जा का ऊपर जलेबिन डाल देंगे, अच्छा टमाटर भी कब आएगा? क्योंकि आपका कंसेप्ट है पहले टमाटर का ऊपर जलेबिन होता है, अब जलेबिन डाल दिए तो टमाटर रहेंगे, वो स्पेशल केसेस है। तो अभी ये करके सुनो, so pathogen है, in the surface of the pathogen there are some molecules, it may be carbohydrate, it may be protein, it may be lipid,
इनमें replication है, but any one of them, the mono or units ना, ये क्या करता है जो यूनिट वो एंटीजेनिक को डिटरमाइन करता है, सो इट इज नोन एज एंटीजेनिक डिटरमिनेंट। एंटीजेनिक डिटरमिनेंट या नहीं, वो रहेगा आपका इनेट में, छोड़ दो उसको, वो इनेट का है, वो ये और ये, हाँ पूछो दोनों से नहीं, दोनों अलग है, वो अलग है ये भी अलग है ना। ये जो एंटीजेनिक डिटरमिनेंट कहाँ होता है, सरफेस में, सपोज ये एरिया, ये ना एंटीबॉडी बनेगा इसका अगेंस्ट, टोटल का अगेंस्ट में नहीं, राइट। एंटीबॉडी किसका अगेंस्ट बनेगा, इसका अगेंस्ट, किसका अगेंस्ट में, एंटीजेनिक डिटरमिनेंट का अगेंस्ट। क्लियर ना, कौन बताएगा कैसे एंटीबॉडी बनेगा, ये बताओ। एंटीजन है, एंटीजन का ऊपर में एंटीजेनिक डिटरमिनेंट है, तो एंटीजेनिक डिटरमिनेंट का अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनेगा, राइट। समझ गए क्या समझ, बताओ आगे। तो क्या बोलेगा, उसको बोलेगा ना एंटीजेनिक डिटरमिनेंट, और उसका अगेंस्ट में क्या बोलेगा ना, तो उसका हम चेंज करेगा एंटीबॉडी डिटरमिनेंट। एंटीबॉडी डिटरमिनेंट को अदरवाइज बोलते एपिटोप, पढ़ेगा एपिटोप, क्लियर। सो एंटीजेनिक डिटरमिनेंट एंड एपिटोप। नाउ एपिटोप ये क्या करेगा, जैसे कि इसका अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनेगा, सपोज एंटीबॉडी आपका वाई सेल, सपोज वाई सेल है, क्लियर। नाउ जैसे कि उसका होल एंटीजन का पर्टिकुलर एरिया में ही एंटीबॉडी जनरेट होता है, बाइंड करता है, इसे में बाइंड करेगा, सही, टोटल एंटीबॉडी के साथ बाइंड, एंटीबॉडी का कुछ पोर्शन होता है, वो पोर्शन आके यहां पे बाइंड होंगे, सपोज दिस पोर्शन ऐसा होता है, एक पोर्शन ही बाइंड करेगा, टोटली बाइंड करेगा, इस पोर्शन ही, तो जिस पोर्शन एंटीबॉडी का एंटीजन में बाइंड करता है, इसको बोलते हैं पैराटोप। व्हाट इज पैराटोप, व्हाट इज एपिटोप, एपिटोप प्रेजेंट on the surface of antigen, surface of the antigen, paratope present on the antibody। now anyone define epitope, कोई डिफाइन कर सकता है एपिटोप को, ओके करो, कौन करेगा डिफाइन एपिटोप, नो सरफेस ऑफ द एंटीजन बोलेंगे तो हम कौन के पास देखा ही नहीं हुआ, क्योंकि उसका सरफेस और बहुत कुछ होंगे, डेफिनेशन मतलब स्पेसिफिक होनी है, और शर्ट कैसे और शर्ट पहनते, अरे शर्ट तो बहुत सारे लोग पहनते हैं, ऐसा बोल नहीं सकते ना, राइट। एंटीबॉडी वहां पे बाइंड करता है, एपिटोप इज दैट रीजन वेयर एंटीबॉडी बाइंड, and पैराटोप is that type of antibody where antigen bind। so simple definition will be epitope is the region where paratope of the antibody bind, when paratope is region where epitope of antibody bind, right। एंटीबॉडी के ऊपर पैराटोप होता है, एंटीजन के ऊपर एपिटोप होता है, दोनों एक दूसरे इंटरेक्शन करते हैं, क्लियर। सो व्हाट इज एपिटोप,
epitope is the region present on the surface of antigen where paratope of the antibody bind. What is paratope? Paratope is present on the antibody where epitope of the antigen bind. Define epitope and paratope. एक ही सेंटेंस लिखे हो, दोनों में epitope paratope दोनों आ गया. Clear? So, antigen determinate epitopes and paratopes. In Greek, epi means non-self, topes means map. Epi means non-self, तो epitope मतलब खुद का नहीं मैप करना, दूसरों का है, हमारा नहीं, non-self मैपिंग करना. Now, epitope region is present on the body of antigen. We know about that. Size of the epitope generally 6 to 8 amino acids या monosaccharide units. The what you call mass is around 750 to 750 kilodalton. Paratope is present in the antibody. Forget about the FB region. I will not discuss about your FB region. Okay, it is present on the antibody. Now, size of paratope 5 to 10 amino acids. Paratope size is 5 to 10 amino acids. अच्छा, paratope का size 5 to 10 monosaccharide हो सकता है? चलो, एक बोला नहीं. कौन-कौन इसको एग्री करते हैं? मैंने पूछा paratope का size 5 to 10 monosaccharide हो सकता है क्या? वो सीधा एकदम से रिफ्यूज किया, नो. मतलब ऐसा थोड़ी हो सकता है इसका. क्यों? तो उसको मेरा सिंपल क्वेश्चन था, जैसे कि एपिटोप का साइज 5 to 10 अमीनो एसिड हो सकता है, 5 to 10 मोनोसैकराइड हो सकता है, बट सेंटेंस से लिख रहा हूँ पैराटोप का साइज 5 to 10 अमीनो एसिड, यहाँ पे मोनोसैकराइड नहीं लिख रहा हूँ. तो क्वेश्चन इज द सेम नंबर एंटीबॉडी अभी के लिए हाँ, मैंने क्या मना किया? आपका पास जो नॉलेज है वो अच्छा है, प्रॉब्लम नहीं है, पर हम नॉलेज में एनरिचमेंट करेंगे. ठीक है? एंटीबॉडी इज नॉट ओनली प्रोटीन मॉलिक्यूल, वी विल डिस्कस एंटीबॉडी सेक्शन. याद रखना, उस टाइम आपको याद आएंगे. क्लियर? तो हमने क्या पढ़ा? एंटीजन पढ़ा, एंटीजन डिटरमिनेंट पढ़ा. अभी आपका पास 10 मिनट टाइम है, अगर किसको वॉशरूम में जल्दी जाके आओ. 9:10 to 9:10 10 मिनट ब्रेक होता है ना आप लोग का, इसमें ना नहीं, जल्दी आओ. बी क्विक, बी क्विक. उसका मेरे लेक्चर होगा आज मेरे हिसाब से. टुडे थर्सडे, जल्दी जाओ. क्या 10:40 का वाला मामला किसको नहीं छोड़ूंगा आज, क्योंकि ब्रेक नहीं दिया है. Who were present online, they can also go, and we will start sharp 10:40. Yeah, 10:42. Okay, 10:42.
Am I audible? Purna? Purna, Dharuvi Ben, Katha, you can chat. Nikita. Okay. So now क्या हुआ? नेक्स्ट क्लास से मैंसी के पास भक्ति नहीं बैठेगी, आरती के पास कीर्ति नहीं बैठेगी। इसका ये मतलब नहीं हुआ आरती के साथ मैंसी बैठेगी। चलो, come to the class. So what we discussed about? We had discussed about last class antigenic determinant. Here, now what is this antigenic determinant? It is present on the surface of a antigen where antibody is bind. Yeah, paratope of antibody is going to be bind. Yeah. So now we will discuss a lot more on that antigenic determinant. Yeah, epitope. Okay. So we discuss on epitope. Look at this picture. In the picture, it is clear that this is your antibody. This area is paratope. This area is epitope. Somewhere it is लैंडस्केप प्रॉब्लम है, इसका और उसमें प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है। Look, this area, this is the antibody. This area is paratope. So this is the antigen. Antigen का आपको area दिखेगा. The epitope and the paratope just enzyme lock and key to it. Then bind. But it's okay. So the next picture is that, look at here. Now, this is your antigen molecular structure. This is your antibody. In this area, this much area is your epitope and paratope binding site. They are binding to each other. This much area. This is one molecule. This is other molecule. Of course, the antigen is larger in size. That means this is the antigen and this is antigen. So epitope and paratope, they interact with each other. Always, if I'm talking about I'm eating food, that means I'm using my mouth. Okay, I cannot eat in food by hand. If I'm talking about antigen binding values, epitope and paratope, they are binding. Not whole antigen binding to whole antigen. हम खाना खा रहे हैं मतलब वही खा रहे हैं कुछ हम खा रहे हैं ना खाना खाने के रीजन है ना सेम एंटीबॉडी एंटीजन बाइंडिंग करता है इट इज अंडरस्टैंड होता है एंटीजन का ऊपर एक रीजन है दैट इज एपिटोप एंटीबॉडी का ऊपर अदर रीजन दैट इज पैराटोप एपिटोप में पैराटोप जो है क्लियर
ओके, ये दोनों कहाँ चले गए? तीर्थ एंड हर्ष, फोन करो जल्दी। उनका दूसरा कोई क्लास है क्या? हाँ, मैं भी तो गया था चाय पीने में। Okay, now this is the molecular structure of your antigen determinant. Now we will go to further इसमें कुछ तो है, चला जाता है बार बार, और छोटे में आपको दिखते नहीं। Okay, so now I will come to the types of epitope. What is types of epitope? We will complete today's types of epitope. Now, what is epitope? Horse. एपिटोप कहाँ आता है आपका सर में? कुत्ता कहाँ है? तो पहले वही तो स्टार्ट करो। व्हाट इज एपिटोप? एपिटोप स्टार्ट विथ ई, एंड विथ ई, वो बोल सकते हो ना? इट विल स्टार्ट एंड एंड विथ ई। This is the R you have to earn. सामने वाले को क्या चाहिए उसी हिसाब से प्रेजेंट करना है, और वो मास्टर लेवल पे आता है। अशोक सर कैसा आंसर चाहिए, पूरी मैडम को अलग से आंसर चाहिए, और भी सर है उनको अलग आंसर, सभी को एक ही टाइप का आंसर नहीं चाहिए, कि सभी आपको एक ही टाइप में पढ़ाते नहीं है, सभी को अलग अलग पढ़ाते हैं। सो एपिटोप इज द रीजन present in the antigen where paratope of antibody is bind. Okay, now type of epitope में, अच्छा, is there possible, suppose एक बैक्टीरिया है, उसमें एक एपिटोप है, एक बैक्टीरिया है, सेम टाइप का एपिटोप 1 2 3 4 है उसका सरफेस में, और एक बैक्टीरिया है उसमें एक एपिटोप एक ही टाइप का, दूसरा टाइप का एपिटोप, तीसरा टाइप का एपिटोप, चौथा टाइप का एपिटोप, इज इट पॉसिबल? So based on possible, based on number of epitope present on the surface of bacteria या surface of antigen, it is unique and multi. ये आपको 6 मार्क में आएंगे। टाइप ऑफ एपिटोप, डिस्क्राइब टाइप ऑफ एपिटोप्स। एपिटोप पैराटोप एक मार्क में आएंगे, एंटीजन डिफाइन एंटीजन 1 मार्क में आएंगे, और ये आएगा 6 मार्क में। 6 मार्क में आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है? मैं आपको एग्जाम में सेम टाइम कांसेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूं, समझ लो। ऐसा नहीं है कि क्लास में आइए, मैं बाहर का कुछ नहीं पढ़ेगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगा लाइफ में। एनीवे, सो two type, one is based upon the number of epitope present on the antigen surface. Two type, one is uni epitope, uni antigen determinant, and a multi. Uni means, look at this picture, this is multi, suppose the antigen
एपिटॉप 1, एपिटॉप 2, एपिटॉप 3, एपिटॉप 4 अलग अलग कलर के हैं, उस हिसाब से उसमें अलग अलग कलर का एंटीबॉडी लगाया गया है। हाँ वो तो बोला, देखो ना ये जो ट्राइंगल है ना, ये इसमें एक ही है, इसमें सेम टाइप का बहुत सारा है, पर इसमें देखो अलग अलग टाइप का बहुत सारा है। ईच स्ट्रक्चर इज डिफरेंट टाइप ऑफ एपिटोप। ना क्वेश्चन इज दैट इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, यूनि बोलेंगे या मल्टी बोलेंगे, क्योंकि इसमें एक ही है, उसमें सेम टाइप का बहुत है। अच्छा इसे यूनि में लिख ही दिया, इसको हम क्या बोलेंगे, यूनि, क्योंकि एक ही टाइप का है, नॉट एक ही, कभी भी एक नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, नॉट देयर इज नॉट ओनली वन। अगर सब भी एक ही टाइप का है दैट इज यूनि, अगर अलग अलग टाइप का है दैट इज मल्टी। नाउ मल्टी डिटर्मिनेंट, it is also overlapping, non-overlapping. How it is happening? Look at here. Suppose this is a bacteria where one antigen is determinate, second determinate. Here, इसमें क्या होगा, जब एंटीबॉडी आके बाइंड करेगा आराम से बाइंड कर सकता है, इसमें भी एंटीबॉडी जब बाइंड करेगा कर सकता है। तो दिस इज नॉन ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग कैसे करता हूं, सपोज ऐसा है, ऐसा है, अगर यहीं पे एंटीबॉडी बाइंड कर लिया, ये और काम नहीं कर रही, दूसरा पे बाइंड नहीं कर सकता है, या इसमें एंटीबॉडी बाइंड कर लिया तो वो इसमें बाइंड नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या होगा, अगर मल्टी डिटर्मिनेंट में अलग अलग जगह में है और इंडिविजुअली इफ एंटीबॉडी कैन बाइंड टू डिटरमिन दैट इज और नॉट ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है। ओवरलैपिंग में क्या होगा, दे कैन एक्ट एज इंडिविजुअली बट वंस एट ए टाइम। क्लियर? लुक एट दिस पिक्चर। ये पिक्चर में ये रेड वाला आ सकता है, बाइंड कर सकता है, ये आपका क्या बोलते हैं, एंटीजन, ये एंटीबॉडी का रेड वाले में बाइंड कर सकता है, पर्पल वाले में बाइंड कर सकता है, ग्रीन वाले में बाइंड कर सकता है, बट याद देखो मिक्स हो गया, पर्पल ग्रीन एक मिक्स हो गया तो मिक्स हो गया, मिक्स होके क्या है, नया अलग टाइप का डिटरमिनेंट बनाएंगे, दो एंटीजन में ओवरलैप हो जाएंगे, ओके, एक नया टाइप का बनाएंगे, उसमें क्या होगा, एक अगर ये एंटीबॉडी बाइंड कर सकता है तो ये नहीं कर सकता है, अगर ये कर लेगा तो वो नहीं कर सकता है। ओवरलैप में क्या होगा, तो एक या दोनों मर्ज होंगे। क्लियर? तो बेस्ड अपॉन द नंबर यूनि मल्टी, लिख दोगे यूनि क्या है, मल्टी क्या है। मल्टी डिटर्मिनेंट अगेन डिवाइडेड इनटू ओवरलैपिंग एंड नॉन ओवरलैपिंग। क्लियर? ओवरलैपिंग के लिखोगे इंडिविजुअल, एक सब क्या करनी है इंडिविजुअली, नॉन ओवरलैपिंग है टू epitopes have overlap each other where only one antigen type of antibody is found, right? बताओ, यहाँ तो कोई क्वेश्चन आपको पास है? ऐसा क्या, मैं आगे जाकर आपको क्रॉस रिएक्टिविटी पढ़ाऊंगा। कुछ एपिटॉप होंगे आपका बैक्टीरिया में, जो आपका बनेगा आरबीसी का एपिटॉप का सही नहीं, उसके लिए एंटीबॉडी बनेगा पर आपका आरबीसी क्लियर हो जाएगी। सो एपिटॉप क्लियर?
अच्छा समझ गया, ये इसका वैसा आ जाएगा, ऐसा बोल रहा हूँ, ये फिर बढ़िया, ये दोनों कैसे प्रॉब्लम है, इसका लेकिन तो होगा, कोई नहीं बोलेगा, इसके ऊपर बैठ कर लेगा, तो फिर क्या होगा, होगा होगा, बैठ ही नहीं होगा, तो एक दूसरे के ऊपर बोले नहीं बोलो, ऐसे नहीं करते, ऐसे हो जाएगा, हाँ, तो ऐसे ही जाएगा, इसके लिए हो गया, कोई बात नहीं, तुम लोग को एक ही टाइप का माइंड चाहिए, हाँ एक कहीं पे भी ओवरलैपिंग हुआ मतलब एक तो होगा ही, एक में माइंड करेगा, सही समझा, ये पे करेगा ही नहीं करेगा, ओवरलैपिंग हो रहा है मतलब क्या होगा, ओनली एक एक्टिव पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, दूसरा पार्टिसिपेट नहीं करेगा, भले वो एक ही टाइप का हो अलग टाइप का हो, क्लियर, सही है, ठीक है, गुड। नाउ ये था सेकेंड टाइप, एक था बेस्ड ऑन नंबर, सेकेंड था बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग को क्या करते हो, इंटीग्रल की प्रॉपर्टी एपिटम की प्रॉपर्टी कंट्री को जाएगी, उसके लिए डिफरेंट एंटीबॉडी चाहिए, वो नहीं ना जाएगी, नहीं, कोई एक बाइंड कर लेगा, दोनों बाइंड नहीं करेगा, कोई एक बाइंड करेगा, ये बाइंड करेगा तो वो नहीं करेगा, वो करेगा तो ये नहीं करेगा, ये पे देखो, अगर यहाँ पे ये बाइंड कर लिया तो ये नहीं करेगा, क्लियर। नाउ आई विल कम टू दी third group of type based on the structure, based on the structure, again this type, one is conformational, what is conformational, conformational क्या होगा, अगर आप डिनेचुरेशन कर देंगे तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी लॉस हो जाएगा, लुक एट हियर, दिस इज एंटीबॉडी, दिस येलो पोर्शन में एंटीबॉडी डिटरमिनेंट, जब आप इसको गर्म कर देंगे, डिनेचर कर देंगे तो फूल गया, फूलने के बाद क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी लॉस हो गया, एंटीजन था upon denaturation when antigen determinant loss, that is known as conformational antigen determinant. Clear? Second one is linear. Linear में क्या होगा, गर्म कर खुला, लिनियर में क्या होंगे, यहाँ पे क्या होगा, अगर आप डिनेचुरेशन होंगे तो अंदर में कुछ हाइडन, इफ देयर आर सम काइंड ऑफ हाइडन एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट एंड that may come outside, yeah, region of antigen, very good example. So here what happens, someone look at here, there is the antigen determinant here, this blue color portion, right, so this is antibody. The upper denaturation what happens, here what happens, there are two protein molecules are there, one of another, तो डिटर्मिन करेंगे तो क्या होगा, दोनों सेकंड अलग, ये अलग होगा, ये अलग होगा, तो पहला वाला आई, दूसरा भी आई, तो लिनियर में क्या देखते हैं, अगर हम डिनेचुरेशन से एंटीजन डिटरमिनेंट लॉस नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिनेचुरेशन से लॉस हो जाएगा, कंफर्मेशन एक लिनियर। थर्ड वन इज न्यू एंटीजन डिटरमिनेंट, न्यू एंटीजन पहले उसमें था ही नहीं, उसमें क्या है, एंटीजन डिटरमिनेंट पहले से था ही नहीं, आपने उसको डिग्रेड कर दिया, जैसे कि ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है, इसी एरिया में कुछ मॉलिक्यूल है और ये एंटीजन रहेंगे, अगर आप यहीं से काट लोगे तो यहाँ पे COH बाहर आ गया, उसका कार्बोक्सिल ग्रुप कोई पर्टिकुलर अमीनो एसिड का कार्बन बाहर दिखता है, तो इट कैन बी एक्टेड बाय एपिट्रोप, तो
तो पहले से उसमें था ही नहीं, क्योंकि ऐसे था, बंद हो गया था, ये कि एक टू साइड बंद कर दिया था हमने। और अगर डिग्रेड कर दोगे तो कोई एरिया जैसे ये देखिए, हाँ ये अगर डिग्रेड कर दिया तो एरिया की हो गया ये ना, इट कैन बी एंटी कोई मॉलिक्यूल में एंटी डिटरमिनेंट हाईली बराबर नहीं कर मतलब ब्रेक कर दोगे, ब्रेक करने से कुछ अमीनो एसिड्स इससे बनेंगे लास्ट में, वो अमीनो एसिड सीक्वेंस एंड में, जैसे कि एंड में अगर ग्लाइसिन 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 चार ग्लाइसिन, सपोज कोई अमीनो एसिड सीक्वेंस का लास्ट में चार ग्लाइसिन और वह दो अलग है, अगर है तो इट कैन बी एज एंटी डिटरमिनेंट, पर कहां पे एंड में, बीच में नहीं। गॉट इट माय पॉइंट? अगर पहले से ऐसा है तो इट कैन नॉट वर्क एज डिटरमिनेंट, बट व्हेन ब्रेक ओवर हियर now it can act as anti-determinant. So initially there is no determinant, but upon cleavage, not denatured, upon cleavage it can act as a, that means a new antigenic determinant can be formed. Now that is known as new antigenic determinant. Here, so how many हमने कितना क्लासिफाई किया? तीन टाइप। नंबर हिसाब से यूनिक मल्टी, that overlapping, non-overlapping. Third one is diversified. Okay, done. इनका नाम क्या है? थर्ड नंबर है कन्फॉर्मेशनल, कन्फॉर्मेशनल linear and new antideterminant. Conformational, linear, new antideterminant. Okay. Neo-antigenic determinant, neo, which has been created by proteolysis. बोलिए neo, NEO, एक मिनट, दिख रहा है अभी दिख रहा है, देखो कन्फॉर्मेशनल, linear, neo. ओके, नहीं का बात ये मॉलिक्यूल को मैं इस मॉलिक्यूल है ना, ये इसका ये बाइलोरल रिएक्शन हो गया, ये मत समझना, ये बाइलोरल रिएक्शन हुआ है, डिनेचर से पहले बाइंड करेगा तो इस तरह से बाइंड करेगा, अगर डिनेचर में बाइंड करेगा तो दो कमी होगी। हाँ ठीक है, एक अंदर में था एक बाहर था, डिनेचर तो खुला हो गया, क्लियर? हाँ फास्ट में की। Okay, now we'll come to the again a 4-mark question, general properties of antigen. Okay, general properties of antigen. तीन, 6 मार्क की भी 6 मार्क आएंगे।
Okay, so general properties. First property, आपको देखने के लिए, विजुअलाइज होने के लिए कुछ तो साइड चाहिए ना? नहीं, आपको नेचर आई में देखने के लिए नॉर्मल कुछ तो साइड चाहिए ना? नहीं चाहिए? चाहिए ना? लाइक दैट antigen properties. First is molecular size. Minimum size equal to 1000 Dalton या 1 kg. आपका बॉडी को पहचानने के लिए मोलिकुलर साइज इक्वल टू 1000 Dalton in unit kg. इससे छोटा बॉडी में इंटर करेगा तो आपका बॉडी को पहचानने के लिए नहीं, कुछ भी नहीं होगा, पहचानेगा ही नहीं. It can be treated as individual sometimes. इससे छोटा मॉलिक्यूल है और कभी-कभी इम्यूनोजेन बनते हो पड़ेंगे, but not always. ओके, वायरस से बड़ा ही होगा पड़ेगा. 1000 Dalton बहुत कम होता है. हाँ, anyway, now generally molecule of 5000 to 10,000 are weak immunogenic. 5000 10, don't write anything. I will say today itself PPT. Generally 5000 to 1000 to 5000 10,000 are weak immunogenic, but 10,000 is sufficient. 10,000 Dalton है तो sufficient to immunoresponse. पर 1000 मिनिमम है, 10,000 होगा तो सही लगेगा, सही चलेगी उसके काम. 1 लाख दैट इज मोस्ट इफेक्टिव. और बड़ा होंगे तो और अच्छा होंगे. आपका बीएस है 1.5 लाख है, पढ़ेंगे हम उसका. नेक्स्ट है सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन. एंटीजन शुड बी नॉन सेल्फ, राइट? सो body's own antigens are recognized as self, hence cannot be generated immunoresponse. You know about that. Homologous antigens from another species are non-self. Still, they create some lesser amount of immunoresponse. Suppose आपका टेक polymerase है, same species का, उसका टेक polymerase का आपका बड़ी इंजन सपोज कर दी गया, फॉरेन मॉलिक्यूल है, हम नहीं करेंगे. उसके बाद मंकी का डालेंगे, थोड़ा ज्यादा करेगा उससे. हॉर्स का डाल देंगे, और ज्यादा करेगा. बैक्टीरिया निकाल के डाल देंगे, और ज्यादा करेगा. तो ग्रेटर फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस, कोई एनिमल का प्रोटीन आपका बॉडी में डाल देंगे और कोई वायरस बैक्टीरिया दूसरा किसी प्रोटीन डाल देंगे, यहां से वहां पे ज्यादा आपका इम्यून रिस्पांस करेगा, क्योंकि फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस कम हो गया. तो अलग टोटल मॉलिक्यूल डिफरेंट हो जाएगी. तो ग्रेटर फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस विल ग्रेटर द इम्यूनोरेस्पॉन्स. देखो ब्रैकेट में अच्छा लिख भी रहे हैं या पढ़ लेना. ग्रेटर फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस इज द ग्रेटर इम्यूनोरेस्पॉन्स. केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी, चलो अब बताओ. होमोपॉलीमर, हेटेरोपॉलीमर, कौन सा ज्यादा इम्यूनोरेस्पॉन्स करेगा? हेटेरो. नहीं, डाल्टन तो ज्यादा ही है. डाल्टन तो ज्यादा ही है. आपको मैं पेट भर के खिलाऊंगा, और क्या खाओगे बताओ?
तो जरा करेगा। हाँ सही है, सही है। Great. चलो, केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी जनरली क्या होता है, होमोपॉलीमर टेंड टू एलिसिट इम्यून रिस्पांस, क्योंकि सब एक ही टाइप का मॉलिक्यूल होंगे, नहीं कर पाएगा अच्छे इम्यून रिस्पांस, बट हेटेरोपॉलीमर्स आर बेस्ट इम्यूनोजेनिक। लिपोपॉलीसैकेराइड्स, lipopolysaccharides are best immunogenic. Here, greater time distance, greater immunoresponse. Lipopolysaccharides are strong immunogenic. सबसे ज्यादा immunogenic होता है lipopolysaccharide, but only lipid cannot elicit any immune response. Only lipid can elicit. Why? Any proteins पड़ेगा आगे एंट्री रूट। अब मुझे बताओ, जो इंट्रावेनस में जा रहा है, सॉरी इंट्राडर्मल में, वो ज्यादा भी रेस्पॉन्स करेंगे इंट्रावेनस। कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल को आप भेग में डाल दोगे, उससे ज्यादा इम्यून रेस्पॉन्स यहाँ होगा। इफेक्ट अलग से बताओ, वहां पे ज्यादा इफेक्ट होगा अलग से। समझ क्या बोल रहा हूँ मैं? ये बोलना चाहता हूँ, कोई इंट्रावेनस में कुछ एंटीबॉडी इंजेक्ट करोगे भेग में ब्लड में, और आप यहाँ से इंजेक्ट करोगे तो इम्यून रेस्पॉन्स यहाँ पे ज्यादा होंगे। यहाँ से मतलब क्या होते हैं, इंट्राडर्मल में जाओगे, क्योंकि एक आपका माइक्रोवेव सेल्स होंगे, बहुत सारे सेल्स होंगे, ठीक है, इन केस ऑफ ब्लड। तो ये लिखा है एंट्री रूट। Protein antigens are subcutaneous or immunogenic because Langerhans cells are present. I will discuss Langerhans cells. The macrophages of the skin. Macrophages of the skin are known as Langerhans cells. Okay, मिलेगा तो monocytes. Blood में होता है monocyte बोलते हैं। जब कोई टिश्यू में कलर तो उसको macrophage बोलते हैं। Macrophages को अलग-अलग जगह में उसका नाम अलग-अलग होता है। Now, these macrophages are present in skin. They are known as Langerhans cells. Langerhans. हाँ, उसका नाम कंटेक्शन अलग बोलेंगे। अब आप ऊपर सेल बोलेंगे, अलग-अलग है। किडनी में होंगे तो माइक्रोग्लियल, मेसेंजियल बोलेंगे, अलग-अलग है, नाम उसका अलग है। ब्रेन में तो माइक्रोग्लियल बोलेंगे, अलग है उसका। तो we discuss them later. So these four 4 मार्क में आएंगे। One is molecular size, second one is cell non-cell recognition, third one chemical complexity, fourth one entry route. बताओ 4 मार्क हो पाएगा? बताओ क्या क्या है? मोलिकुलर साइज और पहले को 1000 लोएस्ट लिमिट है, 10000 इतना होता है। सेकंड वन सेल नॉन सेल, सेल मॉलिक्यूलर एनर्जी डिस्टेंस लो सेल बाहर ना ज्यादा होने, और इनका लिख सकते हो क्या बोलते हैं, ग्रेटर फाइनल डिस्टेंस, पहला ग्रेटर इन रेस्पॉन्स। देन केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी, homopolymers will not be but heteropolymers करेंगे। इसे का लिख सकते हैं अपने lipopolysaccharides are best immunogenic। lipopolysaccharide lipid and polysaccharide दोनों मिला के then are entry subcutaneously internal antigens will create transfer response in contrast to the intravenous। पूरा लेक्चर 2 मिनट लगेगा। एग्जाम मुझे याद है, मेरा एग्जाम 3 घंटे का, मैं हमेशा 2 घंटा में देता था। Clear? Now look at this picture. There are examples of antigens. Now homologous gamma globulin, different molecular size 1.5 lakh title. Next one, mobile serum albumin 69 kilodalton. Right? There are others are also there.
10 egg white lysozyme 15,000. KLS, K-on impact immunocyte, that is above 2 lakh, sorry 20 lakh. OVA albumin 44,000. Sperm viral myoglobin 17,000. Tetanus toxoid 1.5 kg, 1.5 lakh, 1,50,000 lakh. So these are some examples of what you call antigens. Now I will come to another topic which usually comes in 4 mark short and minimum 2 MCQ in antigen category. सुपर एंटीजन, सुपर मेन होते हैं, सुपर वुमेन होते हैं, सुपर एंटीजन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना? वेट, जनरली क्या होता है, एक आप समझाता हूं, ये एंटीजन है, एडेप्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, एक एंटीजन का एक एपिटोप है, सपोज इस एपिटोप, राइट? ये एंटीजन का एपिटोप क्या होता है? इट इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एक सेल होता है जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बोलते हैं। वो क्या करता है, एंटीजन को प्रेजेंट करता है। हम पढ़ेंगे उसको कैसे क्या करते हैं। जनरली उसका ऊपर क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होता है, नाम है एमएच, एमएच मॉलिक्यूल, मेजर हिस्टोकम्प्लेक्स, एनीवे अभी एमएच किया था, एमएच मॉलिक्यूल होता है। ये एमएच मॉलिक्यूल क्या करता है, एंटीजन का एपिटोप को वहीं पे बाइंड करता है, करने के बाद इसको क्या करता है, टी सेल को प्रेजेंट करता है। किसको? टी सेल। ए पे क्या होता है, टी सेल रिसेप्टर होता है, पीसीआर, वो ए पे जाके इसको प्रेजेंट करता है, बाइंड करता है। जनरल मैकेनिज्म याद रहा, फिर से याद करो। एंटीजन है, देयर इज एंटीजन, देयर इज एंटीजन डिटरमिनेंट। एंटीजन डिटरमिनेंट क्या करता है, आपका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंटीजन डिटरमिनेंट को एमएच मॉलिक्यूल का बीच में जहां पे बाइंडिंग होना चाहिए, बाइंड करके टी सेल को प्रेजेंट करता है एंड टी सेल विल रिकॉग्नाइज दैट। दिस इज जनरल मैकेनिज्म। आफ्टर दैट क्या होगा, टी सेल से कुछ केमिकल सिग्नेचर होंगे, इधर बहुत सारे सिग्नेचर होंगे, उसका हिसाब से क्या होगा, या तो मॉलिक्यूल सिग्नेचर होंगे इसको ट्रिगर कर देना है, या अलग रेस्पॉन्सेस होगा। This is the general thing. What is that? This general thing what is happening. But super antigen are the class of antigen. Generally, they are simultaneously bind to the antigen presenting cell as well as T alpha cell. Look at here. General case. This is your T cell receptor, PCR. Upper one is antigen presenting cell. This is MHC molecule. This is the case. Here, generally what happens is general case. But this super antigen, super क्या करता है? Simultaneously, पहले एंटीजन किसको बाइंड करता है, MHC molecule को, फिर बाइंड किसको करता है, टी सेल रिसेप्टर को। पैकेट सीक्वेंस में चलता है, पहले एंटीजन किसको बाइंड करेगा, एमएचसी मॉलिक्यूल को, फिर एमएचसी मॉलिक्यूल किसको देगा, टी सेल को, टी सेल रिसेप्टर को, दोनों बाइंड करेंगे। और कुछ मॉलिक्यूल होते हैं क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली दोनों को बाइंड करेंगे। अभी नॉन स्पेसिफिक है, नॉर्मल एंटीजन होता है बाइंड करता है, ये चेक कर लेंगे, ठीक है, आर एंड साइड बाइंड कर लेगा। So super antigen का definition कैसा होगा? These antigens simultaneously
non-specifically bind to the particular MHC molecule या as well as T cell receptor. क्या antigen presenting cell? Okay. Now look at this. Class of antigen simultaneously bind to the T cell receptor and class MHC molecule. T cell receptor को class MHC molecule को एक ही बार में bind कर लेगा and it binds side of the T cell receptor, side में bind करेगा far away from the binding side, जहां पे bind करना चाहिए वहां पे नहीं करके अलग जगह में कहीं bind करेगा. Clear? Due to that what happen, T cell को गुस्सा आ जाएगा, बहुत जोर से होगी, आएगा ना. आप चेयर में टेबल के ऊपर बैठोगे, पैर ऊपर उठा के मुझे गुस्सा आएगा ही ना. एक तो टेबल के ऊपर बैठोगे, पैर ऊपर उठाओगे, आएगा ना, नहीं आएगा. सेम एक तो दोनों को बाइंड कर लेता है, वो भी नॉन स्पेसिफिकली जैसे करने से नहीं. तो टी सेल यहाँ पे एग्रेसिव हो जाएंगे, क्या करेंगे, एक्टिवेट इंप्रेसिव अमाउंट ऑफ टी सेल. टी सेल जितना एक्टिवेट होना चाहिए था उससे ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे. 5 to 25% ऑफ टी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे. 5 to 25% टी सेल एक्टिवेट होंगे. नॉर्मल केस में 0.01% होते हैं. कोई भी एंटीजन बाइंड हुआ तो टी सेल कितना एक्टिवेट होंगे नॉर्मल केस में. अगर ये बाइंड किया तो टी सेल नॉर्मल केस में 0.1%, 0.01% होंगे. और यहाँ पे 25% तो कौन कितना टाइम बढ़ा, रफली 2500 टाइम, 2500 टाइम बढ़ गया. तो हालत क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा. इसलिए क्या होता है, फीवर, मलेरिया, डायरिया और सारे एकदम से स्टार्ट हो जाता है. ओके, नाउ we will come start with some examples. One example is SEB, Staphylococcus enterotoxin B. This is the name of the superantigen secreted by the Staphylococcus. It is an exotoxin from Staphylococcus pyrogen. Then Mycoplasma arthritis and exotoxin of your Staphylococcus aureus as well, Oxoplateau. Okay. There is also a other was the protein A from Staphylococcus aureus. Protein A. You can write any one example. अगर क्वेश्चन में आएंगे 4 मार्क में, what is super antigen? First point. हाँ, second point super antigen definition करोगे. Third point में what is happens, कितना एक्टिवेट हो जाता है, उसका साइड इफेक्ट और पढ़ने एग्जाम. फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन, सेकंड पॉइंट इफेक्ट, थर्ड पॉइंट साइड इफेक्ट, फोर्थ पॉइंट एग्जांपल. मतलब क्लास ऑफ एंटीजेंस व्हिच साइमल्टेनियसली बाइंड टू द MHC molecule T cell receptor non specific. Second, it will activate intrinsic amount of T cell 5 to 25%. Normal case में 0.0%. Third, due to this इफेक्ट हो गया, साइड इफेक्ट क्या होता है, फीवर, मलेरिया, बॉडी डिजॉर्डर. मैं 4 पॉइंट नहीं है. क्लियर? 4.4 मार्क. डन. मंची नहीं, आप लोग मन करेगा डायग्राम करो. नहीं, अगर लिखा होगा डायग्राम कर लो. ऐसे बाइंड नहीं होता है वो. अलग है कोई अगर एंडोजेनस एंटीजन होंगे, अंदर से प्रोसेस होता है. एक्सोजेनस होंगे तो इंटरनलाइज होंगे, उसको फ्रैगमेंटेड होंगे, एपिटोपिक एजेंट होगा. एपीसी में एपीसी एमएचसी, हाँ दोनों साथ में बाइंड कर लेगा.
कैसे ब्लॉक हो गया? वो है ही नहीं ना अभी, नॉर्मल केस ये है। बात है कि अच्छा बोले ब्लॉक हो गया, कैसे ब्लॉक होगा? एफपीसी में टी सेल रिसेप्टर होता ही नहीं, एफपीसी में एमएचसी मॉलिक्यूल होता है। एफपीसी में एमएचसी मॉलिक्यूल होता है, टी सेल में टी सेल रिसेप्टर होता है। नॉर्मल अगर ये इसमें बाइंड करेगा नॉर्मल केस में, तो टी सेल क्या करेगा, कुछ मॉलिक्यूल सिक्रेट करेगा, उस मॉलिक्यूल को चलते साइटोकाइन, उस मॉलिक्यूल से बाकी सारे टी सेल आएंगे, आके इसको डिस्ट्रॉय करेगा। पर नॉन स्पेसिफिक होने का बाद मॉलिक्यूल का इतना ज्यादा करेगा, कौन सा टी सेल पास में आता है। जैसे कि आपके घर में कॉकरोच है, मम्मी करके बुलाओगे तो मम्मी आएंगे, नॉर्मल रिस्पॉन्स है। सांप है, मम्मी करके बोले, मम्मी पापा भाई बहन सारे घुस जाएंगे कमरे में, यही होता है नॉर्मल केस में। वो जो दूर सिग्नेचर करेंगे मॉलिक्यूल्स, उसमें एक टी सेल दो टी सेल पास में आएंगे, उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। ये तो बस सिग्नल कर दिया, इसका कोई काम नहीं है। उस सिग्नल से आएगा एंटीजन को डिटेक्ट करेगी, और ये नॉन स्पेसिफिक इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत सारे टी सेल इकट्ठा हो जाएंगे एक जगह में आके। ठीक, सो आपका लिंक में अटेंडेंस में भेज दिया, देख लो एक बार। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड यू इन योर ग्रुप, फिल इट now, fill it. Okay, then we will discuss about tomorrow. Now I will stop here. Tomorrow we'll discuss about other antigens, immunogens. Thank you.